سوال و جواب کے لیے تشریف لاتے ہیں، ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے، ما دین کا، تیرا دین کیا ہے، من نبی کا، تیرا نبی کون ہے. ان سے یہ 3 سوال کیا جاتا ہے. وہ آدمی نہ تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کیا ہے، نہ تو کبھی قرآن اور حدیث کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاری ہے. اس انسان نے نہ تو اپنی زندگی کو صوم و صلات میں گزاری ہے، اس انسان نے تو اس دنیا کے اندر حرام خوری میں اپنی زندگی کو گزاری ہے، اس دنیا کے اندر بدکاری میں اپنی زندگی کو گزاری ہے، اس دنیا کے اندر جو ہے لہو و لعب میں اپنی زندگی کو گزاری ہے. جب اس سے سوال کیا جائے گا من رب کا، تیرا رب کون ہے، وہ آدمی کہے گا ہاں لا ادری، میں تو کچھ جانتا ہی نہیں ہوں، مجھے اس چیز کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے. ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، وہ آدمی اس بات پر بھی کہے گا ہاں لا ادری، میں تو جانتا تک نہیں ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، نبی آخر الزمان کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، یہاں پر بھی وہ انسان یہی جواب دے گا میں تو جانتا تک نہیں ہوں. جب وہ آدمی اپنے سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اس انسان نے غلط جواب دیا ہے، اس انسان نے صحیح جواب نہیں دیا ہے، اس کے لیے جو ہے جہنم کے دروازے کو کھول دیا جائے، اور اس کے لیے جہنمی جو ہے بستر کو بچھا دیا جائے، اور جہنمی لباس پہنا دیا جائے، اور اس کے لیے جہنم کے دروازے کو کھول دیا جائے. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی موت کے وقت کے بارے میں اشارہ کیا ہے کہ جب میرے فرشتے کافروں کے پاس اس کے جسم سے روح کو نکالنے کے لیے جاتے ہیں، اس وقت کافر کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس وقت مشرک کی کیفیت کیا ہوتی ہے. ہم نے اور آپ نے بارہا اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے، موت کے بعد کی زندگی جو ہوتی ہے، اس زندگی کے تعلق سے مسلمان کے اندر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایسے لوگوں کے اندر بھی ڈاؤٹ پائی جاتی ہے کہ موت کے بعد بھی کوئی زندگی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ قبر کے جو عذاب ہیں یا موت کے بعد کی جو عالم برزخ کی زندگی ہے، اس کے اوپر بھی کلام کرتے ہیں اور اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہیں. انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں قرآن اور حدیث سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ موت کے بعد کی زندگی جو ہے وہ برحق ہے، اور قبر کے اندر جو عذاب ہے وہ بھی برحق ہے. ایک انسان کو ان تمام کی تمام چیزوں سے دوچار ہونا ہے. اگر ایک انسان نے اس دنیا کے اندر برائی کی ہے، اگر ایک انسان نے اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کو توڑا ہے، تو یہ بات طے ہے کہ اسے قبر کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. سب سے پہلے اسی آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں جس کا میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی سورہ مومن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت. اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے کہ جب کافروں کے پاس میرے فرشتے جب ان کی روح کو نکالنے کے لیے جاتے ہیں، کافروں کے پاس جب میرے فرشتے اس کے جسم سے روح کو نکالنے کے لیے جاتے ہیں، حتی اذا جاء احدهم الموت. اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے والا ہوتا ہے. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کو توڑنے والا ہوتا ہے. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے اندر بدفعلی میں اپنی زندگی کو گزارنے والا ہوتا ہے. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے اندر بے دینی میں اپنی زندگی کو گزارنے والا ہوتا ہے. اور وہ لوگ اس دنیا کے اندر اسی کشمکش میں رہتے ہیں کہ موت کے بعد کوئی زندگی ہے یا نہیں، موت کے بعد عذاب قبر ہے یا نہیں، موت کے بعد حشر و نشر ہے یا نہیں. حتی اذا جاء احدهم الموت.
इसी कशमकश में रहते हैं कि उसके पास मौत आ जाती है। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत, उसके पास मौत आ जाती है। फिर वो आदमी कहता है क़ाल रब्बिरजिऊन, कि परवरदिगार आलम मुझे दुनिया के अंदर लौटा दिया जाए, परवरदिगार आलम मुझे फिर से दुनिया के अंदर लौटा दिया जाए। अब सवाल ये है कि आखिर वो आदमी दुनिया के अंदर आना क्यों चाहता है, वो आदमी इस दुनिया के अंदर दोबारा आना क्यों चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला उसका नक्शा भी कुरान मजीद के अंदर खींच रहा है। लअल्ली अअमलु सालिहा, वो इंसान देखता है कि मेरे लिए तो जहन्नम का अजाब मुंतजिर है, मेरे लिए तो अजाब जहन्नम मुंतजिर है, मुझे तो जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। इसलिए वो इंसान कहने लगता है लअल्ली अअमलु सालिहा, परवरदिगार आलम फिर से मुझे दुनिया के अंदर लौटा दिया जाए, फिर से मुझे दुनिया के अंदर भेज दिया जाए। लअल्ली अअमलु सालिहा, ताकि मैं दुनिया के अंदर नेक अमल कर लूँ, ताकि मैं दुनिया के अंदर सालिह अमल कर लूँ, मैं दुनिया के अंदर नेकी कर लूँ। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला, फिर अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान से कहेगा हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हम तो तुम्हें दुनिया के अंदर दोबारा नहीं भेज सकते। हमने जो तुम्हें जिंदगी दी थी दुनिया के अंदर, वो जिंदगी तुमने अपनी गुजार ली है। जितनी जिंदगी हमने तुम्हें दुनिया के अंदर दिया था, वो सारी की सारी जिंदगी तुमने दुनिया के अंदर बसर कर ली है। अब तुम्हें यहाँ से फिर लौट करके जाना मुमकिन नहीं है। फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, फिर अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है और अगर हम तुम्हें दुनिया के अंदर लौटा भी देंगे, हम अगर तुम्हें दुनिया के अंदर भेज भी देंगे, तो ये बात जो तुम कह रहे हो कि हम दुनिया के अंदर नेक अमल करेंगे, हम दुनिया के अंदर नेकी के कामों में अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, तो तू ये बकवास कर रहा है। तुम जब फिर दुनिया के अंदर जाओगे तो फिर से तुम गुनाह के कामों में मुलव्विस हो जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि ये बकवास जो तुम कर रहे हो, तुम ये कह रहे हो कि हम दुनिया के अंदर जाएंगे और लअल्ली अअमलु सालिहा, हम दुनिया के अंदर नेक अमल करेंगे, हम दुनिया के अंदर नेकी करेंगे, परवरदिगार आलम हम दुनिया के अंदर कुरान और हदीस के उसूलों पर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, तुम ये जो कह रहे हो ये तुम्हारी बकवास है, ये तुम जो कह रहे हो तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हरगिज़ दुनिया के अंदर ऐसा नहीं करोगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, फिर अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि अब तो तुम्हारी जो है आलम बरज़ख की ज़िंदगी शुरू हो रही है, अब तो तुम्हारे लिए आलम बरज़ख की ज़िंदगी शुरू हो रही है, अब तो तुम्हारी ज़िंदगी यही आलम बरज़ख की ज़िंदगी है। इला यौमि युबअसून, और आलम बरज़ख से हम फिर दोबारा तुम्हें क़यामत के दिन उठाने वाले हैं। फिर से हम तुम्हें इसी आलम बरज़ख यानी कब्र की ज़िंदगी से हम फिर तुम्हें क़यामत के दिन उठाने वाले हैं। तुम्हें फिर से दुनिया के अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें दुनिया के अंदर भेजने वाले नहीं हैं। ये एक काफिर इंसान, एक काफिर आदमी की जब मौत की घड़ी आती है उस वक्त उसकी ये कैफियत होती है। इसके बिलमुकाबिल में अल्लाह तबारक व तआला ईमान वाले की ज़िंदगी के बारे में इशारा कर रहा है। जो इंसान मोमिन बन कर के इस दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को गुजारा करते हैं, जो लोग इस दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को नेकी में गुजारा करते हैं, जो लोग इस दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को कुरान और हदीस के मुताबिक गुजारा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के बारे में कह रहा है अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यिबीना यक़ूलून। अल्लाह तबारक व तआला सूरह नहल के अंदर इरशाद फरमा रहा है कि जब एक मोमिन के पास जब मेरे फरिश्ते उसके रूह को निकालने के लिए जाते हैं, उसके रूह को कब्ज़ करने के लिए जाते हैं, उसके जिस्म से उसको रूह को निकालने के लिए जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यिबीन, और मेरे फरिश्ते मेरे मोमिन बंदे के जिस्म से रूह इस हालत में निकालते हैं कि वो पाकीज़गी की हालत में होती है। मुफस्सिरीन ने यहाँ पर पाकीज़गी से मुराद
कुफ्र और शिर्क लिया है। जो इंसान कुफ्र और शिर्क से पाक होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके फरिश्ते जो है मोमिन की ज़िंदगी जो है कुफ्र और शिर्क से पाकी की हालत में अल्लाह तबारक व तआला उसके जिस्म से उसको रूह को निकालेगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है तय्यबीन यक़ूलून सलामुन अलैकुम। जब मेरे फरिश्ते उसके सामने जाते हैं तो मेरे फरिश्ते सबसे पहले उसको सलाम पेश करते हैं। यक़ूलून सलामुन अलैकुम उदखुलुल जन्नत बिमा कुंतुम तअमलून। फिर फरिश्ते उसको बशारत देते हैं, फिर फरिश्ते उसको खुशखबरी देते हैं कि जो तुमने दुनिया के अंदर नेक अमल किया है, जो तुमने दुनिया के अंदर नेकी की है, इसके बदले में तुम जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। सलामुन अलैकुम उदखुलुल जन्नत बिमा कुंतुम तअमलून। जो तुमने दुनिया के अंदर किया है इसके बदले में तुम जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। इसके बदले में जो तुमने दुनिया के अंदर नेकी किया है, जो तुमने दुनिया के अंदर नेक अमल किया है, इसके बदले में तुम जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। ये अल्लाह तबारक व तआला ने एक मोमिन इंसान की ज़िंदगी के बारे में फरमाया कि जब एक मोमिन इंसान का आखिरी वक्त आता है उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर ये वाज़ेह किया कि उसकी कैफियत क्या होती है कि वो पाकीज़गी की हालत में होता है और ऐसी हालत में मेरे फरिश्ते उसके सामने जाते हैं और पाकीज़गी की हालत में उसके जिस्म से रूह को निकाली जाती है और उसके जिस्म से रूह को कब्ज़ किया जाता है। उसके बाद मेरे फरिश्ते जो है जब उसके पास जाते हैं तो उसको सलाम करते हैं और उसको जन्नत की बशारत देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की मग़फ़िरत की खुशखबरी देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की मग़फ़िरत की तरफ निकल। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को पैदा किया, इंसानों की तख्लीक की और साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के लिए 3 अदवार जो है वो मुकर्रर कर दी। एक इंसान जब इस दुनिया के अंदर आता है तो वो आदमी एक दौर को गुजार करके इस दुनिया के अंदर आता है। सबसे पहला दौर जो होता है वो माँ का पेट होता है। उसके बाद वहाँ से जब अपने माँ के पेट से इस दुनिया के अंदर आता है, इस दुनिया के अंदर जन्म लेता है, उसके बाद की ज़िंदगी जो होती है वो दुनियावी ज़िंदगी होती है। यहाँ पर एक इंसान नशो नुमा पाता है, यहाँ पर एक इंसान जो है परवरिश पाता है, यहाँ पर एक इंसान अपने लिए खैर और शर को जमा करता है। उसके बाद खैर और शर को जमा करने के बाद 70 साल 80 साल 90 साल की ज़िंदगी गुजारने के बाद एक इंसान इस दुनिया को छोड़ करके जाता है और उसका तीसरा दौर शुरू होता है, उसका तीसरा दौर शुरू होता है और वो दौर जो है वो कब्र की ज़िंदगी है, वो आलम बरज़ख की ज़िंदगी है। और उसके बाद आलम बरज़ख के बाद चौथी ज़िंदगी जो शुरू होने वाली है वो क़यामत के बाद की ज़िंदगी है। और इस दौर के बाद एक इंसान या तो जहन्नम के अंदर जाएगा या तो जन्नत के अंदर जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इसका नक्शा कुरान मजीद के अंदर कुछ यूँ खींचा, वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदास इला रब्बिहिम यनसिलून। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि जब मेरे हुक्म से मेरे फरिश्ते दोबारा सूर फूकेंगे, क़यामत के बाद जब मेरे फरिश्ते दोबारा सूर फूकेंगे तो जो है आदमी अपने कब्रों से निकल करके अपने चौथे दौर की तरफ दौड़ना शुरू कर देंगे, यानी जो है मैदान महशर की तरफ दौड़ना शुरू कर देंगे। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदास इला रब्बिहिम यनसिलून। यानी चौथे दौर की तरफ एक इंसान कब्र से निकल करके चौथे दौर की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। ये चौथा दौर है एक इंसान की ज़िंदगी का। हम और आप दूसरे दौर के अंदर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। हमने पहला दौर अपने माँ के पेट से बाहर आने के बाद हम और आप दूसरे दौर में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। आज हम या तो इस दुनिया के अंदर अपने लिए खैर को जमा कर रहे हैं या तो इस दुनिया के अंदर शर को जमा कर रहे हैं, या तो हम इस दुनिया के अंदर उस आखिरत के लिए चौथे दौर के लिए या तो हम नेकी को इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी आखिरत की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। ये हमारे लिए दूसरा दौर है। इसके बाद फौरन जो है एक इंसान अपने तीसरे दौर की तरफ रवा और दवा हो जाता है और तीसरे दौर की शुरुआत जो होती है
وہ موت سے ہوتی ہے۔ موت کے بعد ایک انسان کے قبر کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، عالم برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ عالم برزخ کیا چیز ہے، قبر کی زندگی کیا چیز ہے، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں اس دنیا کے اندر صرف اور صرف مٹی کا ایک ڈھیر ہے، ہم اور آپ یہی سوچتے ہیں۔ قبر کی زندگی جو ہے وہ کوئی آسان زندگی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دور جو ہوگا، عالم برزخ کا جو دور ہوگا، وہ فتنے کا دور ہوگا، وہ آزمائش کا دور ہوگا، وہ اندھیرے کا دور ہوگا، اور وہ جو ہے آخرت کی زندگی کا پہلا پڑاؤ ہوگا، پہلا ٹھکانہ ہوگا، جس کے بارے میں آج ہم دنیا کے اندر یہ سوچا کرتے ہیں کہ صرف اور صرف وہ مٹی کا ڈھیر ہے۔ ایک انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے، ایک انسان کو اس مٹی کے اندر دبا دیا جاتا ہے، ایک انسان یوں ہی مٹی کے اندر پڑا رہ جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ اے دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے لوگوں سن لو، تم اس موت سے اگر فرار اختیار کرنا چاہتے ہو تو اس موت سے تم بچ نہیں سکتے، اس موت سے تم فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ ایک دن آئے گا کہ یہ موت تم سے ملاقات کرنے والی ہے، ملاقیکم، یہ موت تمہارے پاس چل کر کے آنے والی ہے اور تم سے ملاقات کرنے والی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اسی قبر کے حوالے کرے گا جس قبر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر جو ہے زندگی گزارنے کے بعد جب قبر کی زندگی گزارنے کے لیے جاتا ہے، جب اسے قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، اگر وہ آدمی اپنے قبر کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے، اگر وہ آدمی قبر کے اندر جو ہے کامیاب ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے آگے کی زندگی جو ہے ہموار ہو جاتی ہے، اس کے آگے کے راستے جو ہے وہ ہموار ہو جاتے ہیں۔ یہ قبر کی زندگی ہے کہ جو انسان اس قبر کے اندر کامیاب ہو گیا وہ باقی کے ادوار میں بڑی آسانی سے کامیاب ہو سکتا ہے اور اس کے آگے کے راستے جو ہے وہ ہموار ہو جایا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ قبر کی زندگی جو ہے وہ آخرت کی منزل میں سے سب سے پہلی منزل ہے اور یہ کسی مولوی کا کلام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان القبر منازل اول الآخرہ، یہ قبر جو ہے وہ آخرت کی منزل میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اس کے بارے میں خلفائے راشدین میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان کے غلام حضرت حانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا جاتا، جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جہنم کے عذاب کے بارے میں تذکرہ کیا جاتا تو اتنا حضرت عمر نہیں رویا کرتے تھے جتنا قبر کو دیکھنے کے بعد رویا کرتے تھے، جتنا قبر کے بارے میں سننے کے بعد رویا کرتے تھے، قبر کے عذاب کے بارے میں سننے کے بعد رویا کرتے تھے، قبر کے عذاب کے بارے میں پڑھنے کے بعد رویا کرتے تھے، جتنا اگر اس کی گزر کسی قبر سے ہو جاتی تھی، قبرستان سے ہو جاتی تھی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح رویا کرتے تھے، قبر کو دیکھ کر کے اس طرح رویا کرتے تھے کہ اس کی داڑھی مبارک بھیگ جایا کرتے تھے، اس کی داڑھی مبارک بھیگ جایا کرتے تھے۔ لوگ اس سے سوال کیا کرتے تھے کہ اے امیر المومنین، آپ کے سامنے جنت کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ کے پاس جہنم کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن آپ جو ہے جہنم کے عذاب کو سننے کے بعد اتنا نہیں روتے ہیں، جنت کے بارے میں سننے کے بعد آپ اس طرح نہیں رویا کرتے ہیں، لیکن آپ عذاب قبر کے بارے میں سننے کے بعد، قبر کو دیکھنے کے بعد آپ اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، میں نے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان القبر اول منازل الآخرہ، یہاں پر جو انسان کامیاب ہو گیا، یہاں پر جو انسان سرخرو ہو گیا، یہاں پر جو انسان اپنے آپ کو بچا لے گیا، وہ باقی کے دور میں بھی اپنے آپ کو بچا لے جائے گا، وہ باقی کے دور میں اپنے آپ کو جو ہے بچا لے جائے گا، جو اس قبر کے اندر اپنے آپ کو
बचा ले गया, अपने आप को कामयाब कर लिया, वो आदमी आगे के अदवार में उसकी जिंदगी जो होगी और आगे का अदवार जो होगा उसके लिए जो है हमवार हो जाएगा। तो ये कब्र की जिंदगी जो है वो आखिरत की मंजिल में से सबसे पहली मंजिल है। आज दुनिया के अंदर कितने ऐसे गुरोह और कितने ऐसे जमात आपको मिलेंगे जो इसी कब्र की जिंदगी से इनकार करते हैं, जो इसी कब्र की जिंदगी को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी कब्र के अंदर जो अजाब होने वाली है, इसी कब्र के अंदर जो एक इंसान की आजमाइश होने वाली है, इसी कब्र के अंदर जो एक इंसान के साथ मुआमला पेश आने वाला है, वो आदमी जो है, वो गुरोह और वो जमात जो है इन सारी की सारी चीजों से इनकार करता है। अल्लाह तबारक व तआला इसी चीज का तज़किरा कुरान मजीद के अंदर कर रहा है। काश तुम उस वक्त को भी देख पाते, यज़रिबूना उजूहहुम व अदबारहुम, जब मेरे फरिश्ते जब उस इंसान की जिस्म से रूह को निकालते हैं, जब उस इंसान की जिस्म से रूह को कब्ज करते हैं, तो मेरे फरिश्ते उनके चेहरों के ऊपर थप्पड़ मारते हैं, उनके पीठ के ऊपर थप्पड़ मारते हैं, उनके चेहरों के ऊपर थप्पड़ मारते हैं। उसके बाद उसके जिस्म से रूह को निकाला जाता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला कहता है वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, उनके चेहरों के ऊपर थप्पड़ों से मारने के बाद, उनके पीठ पर थप्पड़ों से मारने के बाद कहा जाता है वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, तुम चखो आज जो है आग का मजा चखो। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि उसकी पीठ और उसके मुंह के ऊपर जो है थप्पड़ों से मारते हैं मेरे फरिश्ते और उसके जिस्म से रूह को निकालते हैं। मेरे अजीज साथियों, इस आयत करीमा के अंदर इस बात की दलील हमें मिलती है कि एक इंसान अगर इस दुनिया के अंदर जो है बदकारी में अपनी जिंदगी को गुजारता है, गुनाहगारी में अपनी जिंदगी को गुजारता है, तो अजाब का जो दौर है वो इसी दुनिया के अंदर से शुरू हो जाती है। जब फरिश्ते उसके जिस्म से रूह को निकाल हैं, उस वक्त उसके चेहरे के ऊपर और उसके पीठ के ऊपर अगर मार सकते हैं, तो मेरे अजीज साथियों तसव्वुर करें क्या कब्र के अंदर अजाब नहीं होगी? तसव्वुर करें क्या उसे कब्र के अंदर अजाब से दो चार नहीं किया जाएगा? मेरे अजीज साथियों, जो आदमी अजाब कब्र से इनकार करता है उसे इस आयत करीमा से सबक लेनी चाहिए कि उसका अजाब का जो दौर है, उसकी सजा की जो दौर है, वो इस दुनिया से शुरू कर दी जाती है। फिर अल्लाह तबारक व तआला एक दूसरी आयत करीमा के अंदर इसी भी अज़ाब कब्र के बारे में इशारा कर रहा है वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फ़ी ग़मरातिल मौत वल मलाइकतु बासितु अयदीहिम अख़रिजू अनफुसकुम। अल्लाह तबारक व तआला उसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला उसी अज़ाब कब्र की तरफ इशारा कर रहा है कि जब मेरे फरिश्ते उसके जिस्म से रूह को निकाल लेते हैं, उसके बाद उस इंसान से कहते हैं आज का जो दिन है तुम्हारे ऊपर सख्त तरीन अजाब को मुसल्लत किया जाएगा, आज तुम्हें जो है जिल्लत बड़े अजाब के ऊपर मुसल्लत किया जाएगा। आज का जो दिन है तुम्हारे लिए अजाब का दिन है। अल यौमा तुजज़ौना अज़ाबल हून, आज का दिन जो है तुम्हें इस दुनिया के अंदर जिल्लत बड़े अजाब से दो चार किया जाएगा। ये अज़ाब कब्र की तरफ अल्लाह तबारक व तआला इशारा कर रहा है कि अज़ाबल हून अल यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून, आज का दिन जो है वो तुम्हारे लिए जिल्लत भरे अजाब का दिन है। आज का दिन जो है वो तुम्हारे लिए अजाब का दिन है। ये अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब कब्र की तरफ भी इशारा कर रहा है। जो इंसान ये कहता है कि क़यामत के दिन के बाद अजाब का दौर शुरू होगा, अल्लाह तबारक व तआला ने तो उसका तज़किरा अलग तरीके से किया है, लेकिन यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला आज का दिन जो कह रहा है अल यौमा तुजज़ौना, आज का दिन जो है तुम्हारे लिए जो है जिल्लत भरे अजाब का दिन है। गोया कि ये अजाब कब्र की तरफ इशारा कर रहा है अल्लाह तबारक व तआला कि अजाब कब्र के अंदर जो है तुम्हें कब्र के अंदर अजाब से दो चार किया जाएगा और कब्र के अंदर तुम्हें अजाब होने वाली है। तो मेरे अजीज साथियों, कब्र के ताल्लुक से जो इंसान ये दावा किया करते हैं कि अजाब कब्र नहीं होने वाली है, अजाब कब्र तो कोई चीज़ ही नहीं है, तो मेरे अजीज साथियों इन आयत करीमा से एक इंसान को सबक लेने की ज़रूरत है और इस आयत करीमा से एक इंसान को जो है इस आयत करीमा के ऊपर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। तो मैंने आप लोगों के सामने ये आयत करीमा सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद की आयत करीमा को मैंने आप लोगों के सामने पेश किया और एक
काफिर की जिंदगी और उसकी ज़िंदगी के बाद उसकी मौत कैसे होने वाली है उसका मैंने आप लोगों के सामने बयान किया कुरान की आयत से। और मोमिन की ज़िंदगी इसका भी तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर किया। अब जो है हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अलग तरीके से इंसानी ज़िंदगी जब इस दुनिया के अंदर मुकम्मल हो जाती है उसके बाद उसकी मौत कैसे होती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं आयत करीमा के ज़िम्न में वाज़ेह किया है और बयान किया है। मैंने जो है इमाम निसाई, तिरमिजी, बुखारी, मुस्लिम इन तमाम के तमाम हदीसों को इकट्ठा करने के बाद मैं उसके मफ़हूम को आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ कि एक काफिर की ज़िंदगी जब इस दुनिया के अंदर ख़त्म हो जाती है और जब मलिकुल मौत उसके पास तशरीफ़ लाते हैं उस वक्त एक काफिर की कैफियत क्या होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक अंसारी सहाबी के जनाजे के लिए निकले। वहाँ पर पहुँचने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के सामने बैठ जाते हैं और कब्र के सामने बैठने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक अपने चेहरे को उठाते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे सहाबियों की जमात, इस कब्र से बचने की तैयारी कर लो, इस कब्र से बचने की तैयारी कर लो। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी काफिर और काफिर की ज़िंदगी के बारे में बयान फरमाया कि ऐ मेरे भाइयों सुनो, ऐ सहाबियों की जमात सुनो, जब एक काफिर का मौत का वक्त करीब आता है, जब उसका आखिरी वक्त आता है तो उसके पास दो फरिश्ते आते हैं जो निहायत ही बदसूरत होते हैं, जो निहायत ही बदसूरत होते हैं और उसके हाथों में जो है एक बदबूदार कपड़ा होता है, एक बदबूदार टाट होता है, एक बदबूदार बोरा होता है। और उस बोरे को लेकर के आने के बाद उस इंसान की जो है उसकी निगाह जहाँ तक जाती है उस हद तक वो फरिश्ते बैठ जाते हैं। उसके बाद मलिकुल मौत उसके सामने तशरीफ लाते हैं। फिर मलिकुल मौत जब उसके जिस्म से रूह को निकालने की कोशिश करते हैं उसके बाद उसके जिस्म के अंदर रूह जो है उसके जिस्म के अंदर भागना शुरू कर देता है, उसके जिस्म के अंदर जो है दौड़ना शुरू कर देता है। एक काफिर की ज़िंदगी और एक काफिर की मौत के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं कि जब फरिश्ते उसके जिस्म से रूह को निकालने की कोशिश करते हैं या फिर अल्लाह तबारक व तआला की आयत करीमा के मुताबिक जब फरिश्ते उसके रूह को मांगते हैं और अपने हाथों को बढ़ाते हैं उस वक्त उस काफिर के जिस्म के अंदर रूह जो है भागना शुरू कर देता है, दौड़ना शुरू कर देता है। इसी वक्त फरिश्ते उसके चेहरे के ऊपर मारते हैं, उसके पीठ के ऊपर मारते हैं। हमने दुनिया के अंदर इस बात का मुशाहिदा भी किया है कि कितने ऐसे इंसान मौत के वक्त जो है इतने डरे हुए होते हैं, इतने सहमे हुए होते हैं कि उसके जो है पेशानियों के अंदर पसीना और उसकी पेशानियों के अंदर बल पड़ जाती है। तो मेरे अजीज साथियों जो है वो एक इंसान की कैफियत ये होती है कि जो है फरिश्तों को देखने के बाद जब फरिश्ते उसके ऊपर जो है अपने थप्पड़ों को बरसाते हैं और उसके पीठ के ऊपर थप्पड़े बरसाते हैं तो एक इंसान की ये हालत होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर फरिश्ते उसके जिस्म से रूह को निकालते हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रूह को निकालने की कैफियत को बयान कर रहे हैं कि उसके जिस्म से उसके रूह को इस तरह निकाली जाती है जैसे एक रूई को अगर कांटे में रख दिया जाए, किसी कांटेदार गुच्छे में रख दिया जाए तो उस रूई को अगर हम खींचेंगे तो उसका तार तार अलग हो जाता है, उसका जो है तार उसी गुच्छे के अंदर रह जाता है, उसी जो है कांटेदार गुच्छे के अंदर रह जाता है और आधा हिस्सा जो है रूई का आधा हिस्सा उसके हाथों में आ जाता है। जब उस इंसान के जिस्म से रूह को निकालते हैं तो बिल्कुल इसी तरह जो है उसके जिस्म की सारी रगें टूट जाती है, इसी तरह उसके रूह को निकाला जाता है। फिर अल्लाह के नबी कहते हैं कि जैसे ही उसके जिस्म से रूह को निकाला जाता है, जैसे ही मलिकुल मौत उसके जिस्म से रूह को निकालते हैं, वो फरिश्ते जो दूरी पर बैठे हुए होते हैं, जो निहायत ही बदसूरत होते हैं, जिसके हाथों में जो है बदबूदार कपड़ा होता है, फौरन वो जो है मलिकुल मौत के हाथों से उस रूह को ले लेते हैं और उसको लेकर के आसमान दुनिया की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। आसमान दुनिया की तरफ निकल जाते हैं। फिर आसमान दुनिया यानी पहले आसमान के ऊपर जाते हैं। फिर वहाँ पर
آواز دیتا ہے کہ دروازے کو کھولا جائے، فرشتے جو ہے اس کے لیے اس انسان کے لیے دروازے کو نہیں کھولتے ہیں۔ فرشتے سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے کس کے روح کو لے کر کے آیا ہے؟ اس کے بدترین نام کو لے کر کے کہا جاتا ہے کہ فلاں بنت فلاں بن فلاں کے روح کو لے کر کے آیا ہوں۔ اس کے برے سے برے اور بدترین سے بدترین نام لے کر کے کہتا ہے، پھر اس کے لیے جو ہے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ قرآن مجید کے اندر بھی کھینچا ہے، لا تفتح لهم ابواب السماء۔ جب اس کے روح کو لے کر کے آسمان کی طرف جاتے ہیں، لا تفتح لهم ابواب، تو اس کے لیے جو ہے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں۔ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، اور یہ لوگ جس کے لیے آسمان دنیا کے اوپر دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں، یہ انسان کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے، یہ آدمی کبھی جنت کے اندر نہیں جا سکتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک محاورے کو بیان کیا ہے، تو فتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک محاورے کو بیان کر رہا ہے کہ یہ آدمی اس وقت جنت کے اندر جا سکتا ہے جبکہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے۔ ایک سوئی ہے اور اس سوئی کا جو سوراخ ہے، اگر اس سوراخ میں اونٹ اگر داخل ہو جائے اس وقت یہ انسان جنت کے اندر جا سکتا ہے۔ جب تک وہ اونٹ اس سوئی کے سوراخ میں نہیں داخل ہوگا اس وقت تک وہ آدمی جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس کے روح کو پھر سے زمین کے اندر لوٹا دیا جائے۔ پھر اس کے روح کو جو ہے زمین کے اندر لوٹا دیا جاتا ہے، پھر اس کو دفن کیا جاتا ہے، پھر اس کے جسم کے اوپر اس کے روح کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ پھر منکر نکیر اس کے پاس تشریف لاتے ہیں، سوال و جواب کے لیے تشریف لاتے ہیں، ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ من رب کا تیرا رب کون ہے، ما دین کا تیرا دین کیا ہے، من نبی کا تیرا نبی کون ہے۔ ان سے یہ تین سوال کیا جاتا ہے۔ وہ آدمی نہ تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کیا ہے، نہ تو کبھی قرآن اور حدیث کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاری ہے۔ اس انسان نے نہ تو اپنی زندگی کو صوم و صلات میں گزاری ہے، اس انسان نے تو اس دنیا کے اندر حرام خوری میں اپنی زندگی کو گزاری ہے، اس دنیا کے اندر بدکاری میں اپنی زندگی کو گزاری ہے، اس دنیا کے اندر جو ہے لہو و لعب میں اپنی زندگی کو گزاری ہے۔ جب اس سے سوال کیا جائے گا من رب کا تیرا رب کون ہے، وہ آدمی کہے گا ہاں لا ادری، میں تو کچھ جانتا ہی نہیں ہوں، مجھے اس چیز کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے۔ ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے، وہ آدمی اس بات پر بھی کہے گا ہاں لا ادری، میں تو جانتا تک نہیں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، نبی آخر الزمان کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، یہاں پر بھی وہ انسان یہی جواب دے گا میں تو جانتا تک نہیں ہوں۔ جب وہ آدمی اپنے سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اس انسان نے غلط جواب دیا ہے، اس انسان نے صحیح جواب نہیں دیا ہے، اس کے لیے جو ہے جہنم کے دروازے کو کھول دیا جائے اور اس کے لیے جہنمی جو ہے بستر کو بچھا دیا جائے اور جہنمی لباس پہنا دیا جائے اور اس کے لیے جہنم کے دروازے کو کھول دیا جائے، اس کے لیے جہنم کے دروازے کو کھول دیا جائے۔ پھر جو ہے ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کے سامنے جنت کے دروازے کو کھولا جائے گا، اس انسان سے کہے گا کہ دیکھو یہ تمہارے لیے ٹھکانہ تھا، لیکن دنیا کے اندر علماء نے، دنیا کے اندر انبیاء نے، دنیا کے اندر رسولوں نے تمہیں اسی گھر کی طرف بلایا تھا، تمہیں اسی دین کی طرف دعوت دیا تھا، لیکن تم نے اس چیز سے انکار کیا تھا، تمہارا یہ ٹھکانہ تھا، اور اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، جنت کے دروازے کو بند کیا جائے گا، پھر جہنم کے دروازے کو کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ بھڑکتی ہوئی انگارے جو ہے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، یہ دروازے جو ہے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ کافر کے انسان کی زندگی جو موت کے وقت ہوتی ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اسی طرح ایک مومن انسان کی زندگی کے بارے میں فرمایا۔ میں سرسری طور پر آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ مومن انسان کی جب آخری وقت آتا ہے، جب اس کے پاس
मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं और जब उसका आखिरी वक्त होता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके पास दो फरिश्ते आते हैं जो निहायत ही खूबसूरत होते हैं, जो निहायत ही हसीन होते हैं और उसके हाथों में जो है जन्नती कपड़ा होता है और वो खुशबूदार होता है। इस तरह का खुशबू जो है उसके कपड़े के अंदर होता है। फिर जो है उस इंसान की हद निगाह वो फरिश्ते बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत उसके सामने तशरीफ लाते हैं और उसके जिस्म से उसके रूह को कब्ज करते हैं और उस इंसान से कहा जाता है कि ए पाकीज़ा रूह, ए पाकीज़ा रूह, ए मुत्तकी रूह, ए पाकीज़ा रूह, अल्लाह तबारक व तआला की मग़फ़िरत की तरफ निकल, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की तरफ निकल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसकी रूह उसके जिस्म से इस तरह निकल जाएगी, इस तरह उसके जिस्म से निकल जाएगी जिस तरह मशकीज़े से पानी बहकर निकल जाता है। जिस तरह एक गिलास में अगर पानी रखा जाए और उस पानी को अगर उड़ेला जाए तो उस गिलास से जितनी आसानी के साथ पानी निकल जाता है, बिल्कुल इसी तरह उस मोमिन और मुत्तकी इंसान के जिस्म से उसकी रूह निकल जाती है। फिर जैसे ही मलकुल मौत उस रूह को अपनी हाथ में लेते हैं, वो फरिश्ते, खूबसूरत फरिश्ते जो है जिसके हाथों में जन्नती लिबास होता है, वो अपने हाथों में उस रूह को ले लेते हैं और उस रूह को लेने के बाद जो है आसमान दुनिया की तरफ चले जाते हैं। फिर जो है पहले आसमान की तरफ आवाज़ लगाते हैं कि दरवाजे को खोला जाए। इसके लिए दरवाजे को खोल दिया जाता है। इसके लिए बेहतरीन से बेहतरीन नाम लेकर के पुकारा जाता है कि फला बिन फला के रूह को लेकर के आया हूँ, इसलिए जो है आसमान के दरवाजे को खोला जाए। इसी तरह पहले आसमान के बाद जो है 7वें आसमान तक उसकी रूह को लेकर के जाया जाता है। वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मेरे बंदे की रूह को इल्लियीन में लिख दो, मेरे बंदे की रूह को इल्लियीन में लिख दो और इसके रूह को फिर से दुनिया के अंदर लौटा दो, क्योंकि हमने इसे मिट्टी से पैदा किया है और क़यामत के दिन हम इसे मिट्टी से फिर से पैदा करने वाले हैं, इसे मिट्टी से उठाने वाले हैं। तो मेरे अजीज साथियों, उस इंसान के रूह को फिर से जो है उसके कब्र के अंदर डाल दिया जाता है और उसके बाद उसके पास जो है सवाल और जवाब होता है। उसके पास भी यही सवाल होता है, मन रब्बो का, मन दीनों का, मन नबियों का। ये इंसान मुत्तकी है, ये आदमी परहेज़गार है, इसने कभी अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क नहीं किया, इसने कभी या गौस अल मदद का नारा नहीं लगाया, इसलिए ये आदमी फौरन अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेगा कि मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? वो आदमी कहेगा, वो मोमिन कहेगा, वो मुत्तकी कहेगा कि मेरा रब तो अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह है। फिर जो है दीन का सवाल होगा, नबी का सवाल होगा, ये सारे के सारे जवाब दे ले जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला जो है आवाज़ लगाएगा कि मेरे बंदे ने सही जवाब दिया है। इसके लिए जन्नत के दरवाजे को खोल दिया जाए, जन्नती लिबास पहनाया जाए और जन्नत के बिछौने बिछा दिया जाए और इसके लिए जन्नत के दरवाजे को खोल दिया जाता है। एक दूसरी हदीस के अंदर कहा जाता है कि इसके लिए भी जहन्नम के दरवाजे को खोला जाएगा और उसे दिखाया जाएगा कि ये तुम्हारा ठिकाना था, लेकिन तुमने कुरान और हदीस के उसूलों को मान करके चला, तुमने सौम सलात की पाबंदी में अपनी जिंदगी को गुजारी, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें इस जहन्नम से बचा करके तुम्हारे लिए इस जन्नत में ठिकाना मुकर्रर कर दिया है। अब तुम्हारा ठिकाना यही है। फिर अल्लाह के नबी कहते हैं कि उसे दुल्हन की तरह सुला दिया जाता है, उसे दुल्हन की तरह सुला दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि फिर तुम्हें इसी कब्र से क़यामत के दिन जगाया जाएगा, इसी कब्र से तुम्हें दोबारा क़यामत के दिन उठाया जाएगा। तो मेरे अजीज साथियों, इस हदीस से एक मसला ये भी वाज़ेह होता है, एक मसला ये भी वाज़ेह होता है कि अगर किसी कब्र वाले से किसी चीज़ को मांगा जाए तो वो पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वो मुत्तकी और परहेज़गार को जो है नींद के अंदर दुल्हन की तरह सुला दिया गया है और उससे ये कह दिया गया कि तुम्हें इसी कब्र से दोबारा क़यामत के दिन उठाया जाएगा। गोया कि इसके बावजूद अगर कोई आदमी उस कब्र से जाकर के किसी चीज़ का मुतालबा करता है तो वो कब्र वाले पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंसान फिर दोबारा क़यामत के दिन उठाया जाएगा। तो मेरे अजीज साथियों, ये जो है मैंने आप लोगों के सामने मौत के हवाले से कुछ बातें आप लोगों के सामने पेश की। उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।